हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रतीक्षा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ कैपिटल मार्केट एंड व्हाट आर द सेगमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। वी ऑलरेडी डिस्कस द मनी मार्केट इन द प्रीवियस वीडियो। नाउ इज द टाइम टू डिस्कस द कैपिटल मार्केट एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कैपिटल मार्केट एंड द सेगमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट। तो चलिए देख लेते हैं कैपिटल मार्केट क्या होता है। Capital market is a market for middle and long term period. Okay, capital market long term and middle term finance provide करता है। Capital market include all the institutions, organization which are dealing with the long term and the middle term finance. Okay, अगर हम शॉर्ट टर्म पीरियड की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म पीरियड इज जनरली फॉर द 1 ईयर। अगर हम लॉन्ग टर्म पीरियड की बात करते हैं 2 साल 3 साल, राइट, इट इज मोर देन 1 ईयर, राइट। वी आर डीलिंग विद द लॉन्ग टर्म एसेट और वी आर डीलिंग विद द लॉन्ग टर्म फाइनेंस, सो वी आर डीलिंग विद द मोर देन 1 ईयर, राइट, 2 ईयर और 3 ईयर, राइट। नाउ सी what are the instrument, right? The instrument of a capital market are share, debenture, bonds, mutual fund, depositories, etc., right? So let's see the features of the capital market, or we can say the nature of the capital market. Capital market is the link between saver and the investment process, or we can say capital market is a link between saver and the investment opportunities, right? Capital market play a very crucial role, है ना, in saving of savers to make the investment process by making investment in the various investment plan. Capital market एक ऐसा रोल प्ले करता है जिसके पास सरप्लस ऑफ मनी है, ओके, उसको इंड्यूस करता है, उसको इनकरेज करता है टू मेक इन्वेस्टमेंट इन वेरियस इन्वेस्टमेंट प्लान, राइट। So capital market is the link between saver and the investment opportunities, right? Now come to next, deal with long term. What? Deal with long term fund. Okay, capital market deal with long term fund because we already discussed that in money market, right? Money market provide finance for 1 year and the capital market provide finance for more than 1 year, okay, which is the long term growth. It help in the long term growth and it also help in the capital formation, right? Capital formation, what? Capital formation in the sense, if you are dealing with the long term assets, so long term asset going to give result in longer period of time, which is benefited for the long run period, right? Which give benefit in the long term period. It is a long term growth, right? Hopefully the long term investment is clear to you all. Now coming to the utilizes intermediaries. Capital market utilizes intermediaries in the sense, capital market क्या करता है, एक intermediaries को हायर करता है, वो सिक्योरिटीज़ को क्या करता है, सेल आउट करते हैं। They are going to sell out the securities, so they are going to hire the intermediaries. It is the most important element of the capital market. Intermediaries बहुत ही important हिस्सा है और we can say it is the most important element of the capital market, okay, because we can say that brokerage, है ना, for brokerage we have to give commission to them, okay, underwriters, prospectors, these are some of the intermediaries or depositories, okay, ये क्या है, intermediaries है, right? Determinants of capital formation. Determinant of capital formation in the sense, capital market, okay, capital market decide the rate of capital formation, in the sense to say that कैपिटल मार्केट कैसे रेट को फिक्स करता है और डिसाइड करता है, बिकॉज कैपिटल मार्केट क्या करता है, जो सरप्लस यूनिट है, जो सेविंग यूनिट है, उनको क्या करता है, इनकरेज करता है, ओके, इनकरेज और अट्रैक्ट, है ना, इट अट्रैक्ट द जनरल पब्लिक, ओके, it attract the savers who is going to save, okay, those who are having surplus of money
ये उनको क्या करता है, इनकरेज करता है टू हैव मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करेंगे तो दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन समथिंग। ओके, इन्वेस्टिंग इन समथिंग मीन्स टू से कैपिटल मार्केट उनको इनकरेज करता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, राइट। टू हैव अ बेटर प्रॉफिट और टू हैव अ मोर प्रॉफिट इन फ्यूचर बाय मेकिंग huge amount of investment in a particular investment plan, right? Capital market are going to encourage the saving unit, okay, to have more saving with them for making investment, right? So hopefully the nature, or we can say the features of capital market is clear to you all. Now coming to the segment, right? The segment of capital market. Capital market are categorized in two ways, which is primary market and the secondary market. तो आज की हम इस वीडियो में प्राइमरी मार्केट डिस्कस करने वाले हैं, राइट। प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट फॉर द न्यू सिक्योरिटीज, राइट, न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स और न्यू इश्यू ऑफ शेयर। ओके, प्राइमरी मार्केट ये ऐसा मार्केट है जिसमें न्यू सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है और न्यू शेयर्स को सेल किया जाता है, राइट। प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट इट इज़ अ फर्स्ट हैंड मार्केट, राइट। सेकेंड हैंड मशीनरी से डील नहीं करता और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज से डील नहीं करता, वो क्या है, प्राइमरी मार्केट विच डील विद फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज। ओके, द सिक्योरिटीज आर इशूड बाय द कंपनी itself, right? In the primary market, the securities are issued by the company itself, right? The company directly go through the investors. Investor के पास खुद कंपनी डील करती है, खुद इन्वेस्टर से के साथ खुद कंपनी डील करती है प्राइमरी मार्केट में, राइट। All the new securities are issued by the companies, okay, in the primary market. Let's see what are the flotation in the primary market. Let's see. Public issue through prospectus. Public issue through prospectus in the sense, in this method, okay, in this method a company is going to issue some of the securities to the general public by issuing some of the prospectus. Prospectus in the sense it provide all the informations or it give detailed information of particular company. It gives that how and what amount the company is going to raise, for what purpose the company is going to raise the particular amount, and what is the past performance of the company, and what are the growth objective and the growth agendas of the particular company. ये जो प्रोस्पेक्टस रहता है उसमें ये सब दिया रहता है, कंपनी की पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रहती है कि कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या थी, राइट, उसकी अभी जो कंडीशन क्या है किसी भी कंपनी की, so that the investor, okay, the investor get to know all the information about the particular company, and they are going to decide that how much they are going to invest or not, right, in a particular company. So public issue through prospectus. Hopefully this is clear to you all. Now coming to next, which is offer for sale. Offer for sale, okay. Offer for sale in the primary market, okay. The primary market, the company sell all such securities to the intermediaries. Offer for the sale means to say that कंपनी क्या करती है, अपनी जितनी भी सारी सिक्योरिटीज़ हैं, जो न्यू सिक्योरिटीज़ हैं, उनका क्या करती है, इंटरमीडिएटरीज को सेल आउट कर देती है, ओके। सो इंटरमीडिएटरीज क्या करते हैं, इंटरमीडिएटरीज आर द फर्म्स, ये क्या है, फर्म्स हैं ब्रोकर्स की, ओके। इंटरमीडिएटरीज आर द फर्म्स ऑफ ब्रोकर्स, राइट। देन इंटरमीडिएटरीज क्या करती हैं, इन सिक्योरिटीज़ का या तो ये
ये क्या करती है, एक पर्टिकुलर रेट पे ये किससे खरीदती हैं, कंपनी से खरीदती हैं, राइट। देन दे आर गोइंग टू सेल आउट दी सिक्योरिटीज टू दी जनरल पब्लिक एट अ हायर रेट। फिर इनका वो क्या करती हैं, इनको हायर रेट पे सेल आउट करती हैं जनरल पब्लिक में, राइट। सो ऑफर फॉर सेल, इसमें क्या होता है, ये जो भी कंपनी है, राइट, कंपनी क्या करती हैं, सारी सिक्योरिटीज़ को इंटरमीडिएट के लिए, इंटरमीडिएटरीज जो रहती हैं उनके लिए क्या करती हैं, सेल आउट कर देती हैं। और जो इंटरमीडिएटरीज रहती हैं वो सारी सिक्योरिटीज़ को एक साथ खरीद लेती हैं। देन ऑल्सो ये मार्केट की कंडीशन देखती हैं, कितना मीन्स दे आर गोइंग टू सी द ट्रेड साइकिल, राइट, कि कितना एक्सेस ऑफ अमाउंट है और एक्सेस ऑफ मनी है मार्केट में, ओके, मार्केट में। देन ओनली दे आर गोइंग टू सेल आउट द पर्टिकुलर सिक्योरिटीज टू दी पब्लिक, राइट, एट अ हायर रेट। होपफुली दिस इज क्लियर। इन दिस ऑफर फॉर सेल, अगर ये जो अपनी इंटरमीडिएटरीज के लिए जो सिक्योरिटी सेल आउट कर देती हैं कंपनीज, तो ये फॉर्मेलिटीज़ एज वेल एज द कॉम्प्लेक्सिटीज से भी बच जाती हैं, राइट। उनको इनके लिए क्या नहीं कराना पड़ता, इनके लिए दे डू नॉट हैव टू मेक लिस्ट आउट सर्टन, they do not want to list out certain securities through SEBI, ओके, इनको SEBI के लिए लिस्ट आउट नहीं कराना पड़ता। दे ये फॉर्मेलिटीज से भी बच जाती हैं और कॉम्प्लेक्सिटी से भी बच जाती हैं। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट, विच इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर इन द सेंस, ये जो कंपनीज रहती हैं, ओके, द कंपनीज दोज हु आर हैविंग सिक्योरिटीज, the company are going to sell such securities to the intermediaries। किसी भी एक पर्टिकुलर प्राइस को फिक्स करके ये इंटरमीडिएटरीज को अपनी सिक्योरिटीज सेल कर देती हैं, राइट। आफ्टर टेकिंग सिक्योरिटीज फ्रॉम द कंपनी, इंटरमीडिएटरीज क्या करती हैं, इंटरमीडिएटरीज कुछ सिलेक्टेड एंड रेपुटेटेड क्लाइंट को सेल आउट करती हैं हायर प्राइसेस पे, ओके। पहले कुछ फिक्स रेट पे इन्होंने क्या किया, सिक्योरिटीज़ को खरीदा। देन ओनली दे आर गोइंग टू सेल आउट सच सिक्योरिटीज़ टू द सिलेक्टेड क्लाइंट। कुछ सिलेक्टेड क्लाइंट्स को ही ये क्या करती हैं, उस सिक्योरिटीज़ को क्या करती हैं, सेल करती हैं, ओके। एंड फ्रॉम देम दे आर गोइंग टू अर्न मोर प्रॉफिट, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करती हैं, राइट। ये क्या होता है कि ये अधिकतर रेपुटेटेड जो भी क्लाइंट रहते हैं उनको वी कैन से इनकलकेट करती हैं, राइट, टू हैव देयर सिक्योरिटीज़, अच्छे से अच्छा दाम लेने की कोशिश करती हैं अच्छे रेपुटेटेड क्लाइंट से, राइट। दे जनरली डील विथ UTI विच इज़ यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस, जनरल इंश्योरेंस एसेट्रा, okay. Hopefully the private placement of share is clear to you all. Now coming to next, which is right issue. Right issue, or we can say existing right, existing जो शेयर होल्डर रहता है उसका राइट क्या होता है कि कभी भी सिक्योरिटी जनरल पब्लिक और आउटसाइडर को इशू करने से पहले उनका प्रीहेम्पटिव राइट है कि वो सिक्योरिटीज़ को ले सकते हैं। क्योंकि अगर कंपनी बिना किसी को, मतलब कंपनी आउटसाइडर से ऐसे डील नहीं कर सकती जब तक वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से परमिशन ना ले। दे आर गोइंग टू कंफर्म दैट देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर रियली वांट दीज सिक्योरिटीज और दे आर एबल टू गेट ऑल सच सिक्योरिटीज। क्या वो उन सिक्योरिटीज़ को लेना चाहते हैं? After that, after the consultation of the existing shareholders, okay, the company may further sell out the securities to the outsider, okay. Hopefully the right issue of share is clear to you all. We already discussed the meaning of capital market, features of capital market and the segment of capital market. In this video we only discussed the primary market
In the upcoming video, we are going to discuss the secondary market. Hopefully this is clear to you all. Keep watching this video. Please like, share and subscribe my channel.